गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के सामर्थ्य नाम में मैं एक बार फिर आज की सुबह आप सबका खैर मकदम करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ, शुभ प्रभात बोलना चाहता हूँ, आज के दिन की बरकत आपके जीवनों पे बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीबॉडी in this beautiful morning once again. I don't know whether you're watching us on morning or you are watching us in the evening, in the afternoon, whatever the time it is. I just want to speak Lord's grace upon your life. The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 16 and verse 27. नीति वचन 16-27। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। ये तो बहुत कॉमन हमारे देश में एक हम बोलने का तरीका है, अरे उसने आके आग लगा दी। लिटरल आग की बात नहीं कर रहा है, लगाने की बात यह है कि उसने आके कुछ ऐसा बोला कि उसने आग लगा दी। बहुत से जिंदगियों में आपने लोगों को आग लगाते देखा होगा। अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ की जिंदगी चल रही थी, कोई आया बीच में, उसने आग लगा दी। अच्छा खासा कलीसिया है, आके आग लगा दी। अच्छी खासी एक सेवकाई चल रही थी, एक ग्रुप था छोटा सा, कोई आया, उसने आके आग लगा दी और चीजों को खराब कर दिया। ऐसे आग लगाने वाले ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत ढेर सारे लोग। लिखा है 27वीं आयत में, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति बनाता है। ये जो आग लगाने का काम है ना, वो किसी धर्मी व्यक्ति का नहीं होता। अगर कोई आपके रिलेशन में आग लगा रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बीच में आग लगा रहा है, आपको मिलाने की जगह आपको तोड़ रहा है, आग लगा रहा है बीच में, दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम गॉड। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आग लगाने की बात कहां करी है? कोई है, कभी कोई आपसे आके बोल रहा है, बुराई कर रहा है, तुम्हें मालूम तुम्हारा पति इतना खराब है, तुम्हारे लिए ये बोलता है, और पति से जाके बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी बड़ी खराब है, ये कहती है। These are people जो आके आग लगा रहे हैं आपकी जिंदगी में। सावधान रहिए। I'm going to read it in English like, an ungodly man diggeth up evil. Ungodly man, he diggeth evil. He plans evil. And then it is written, and in his lips there is as a burning fire. And in his lips there is a burning fire. It's not literally a fire, but you must have experienced some people, when they come to our house, they speak something that actually raises a fire in our house, in a relationship. If somebody is coming to you and you and your wife or your husband, you are not having a very good relationship, and if somebody's coming and they're kind of putting fire upon it, they are talking and they're telling you, this is what your husband says about you, and he talks about you, and blah blah blah, and this is what your wife says about you. You know what? He might be right, but there is one more thing which is right. He is not a godly person. He's ungodly. Yeah, it might happen that because of something you both are not having a good relationship, so you might have spoken against each other at any moment of time. But the Bible says, the blessed are they those who bring peace. Bible does not teach us about lighting fire in others' relationship. खुदा का कलाम हमें दूसरों के संबंधों में आग लगाना नहीं सिखाता, दूसरे के घरों में आग लगाना नहीं सिखाता, दूसरों के जीवनों में आग लगाना नहीं सिखाता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ रहा है, सावधान, वो कुछ प्लानिंग के साथ आ रहा है, आपके बचे कुचे घर को, आपके बचे कुचे जीवन को, आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देगा।
Let's pray. Lord, I thank you for your word. Thank you for the sign of warning, Lord. When an ungodly comes, he comes with a fire in his lips, and his aim is to destroy our lives. But Father, today I pray, as you have filled us with your word, may through the power of your Holy Spirit, we may be able to stop these kind of people from coming into our life, from speaking into our relationships. Lord, we just want to stop them right over there, because we don't want them to destroy our lives. Give us the strength of your Spirit. Give us the strength of your Holy Spirit, Lord, that we may be wise enough to recognize such people and to stop them right over there, Lord. धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें इतना खूबसूरत वचन दिया है। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं प्रभु, और ऐसे ही आग लगा के जाते हैं हमारे रिलेशंस में, हमारे घरों में, माँ बापों के बीच में, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में। पर अपने पवित्र आत्मा से आज हमें सामर्थ्य दे, हम ऐसे लोगों को दूर ही रोक दें, इन्हें अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में बोलने ना दें। हमारी मदद कर पिता, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम कई बार ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। पर चाहते हैं हमें सामर्थ्य दे कि हम इन्हें रोकें, और प्रभु तेरे वचन के अनुसार समझ जाएं कि ये परमेश्वर का जन नहीं है, क्योंकि तेरे लोग शांति की बातें करने आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपके नाम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस आई आस्क, आमेन। God bless you. Thank you so much. Please do not forget this word. Many families are destroyed because of such people. इस वचन को मत भूलिएगा। बहुत से परिवार खराब हो गए ऐसे लोगों के वसीले से। और साथ ही ना भूलिएगा अनीश मसीह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे बहुत से नए गाने, बहुत सी नई वीडियोस, बहुत सी प्रार्थनाएं, बहुत से वचन उस चैनल पे आने जा रहे हैं। आप ब्लेस्ड होंगे उनसे। बहुत से लोगों से वो चैनल का लिंक शेयर करेगा। आस्क देम टू जॉइन, बिकॉज व्हेन दे आर गोइंग टू जॉइन, बिलीव मी, आवर न्यू सॉन्ग्स आर गोइंग टू ब्लेस यू। हमारे नए गीत आपको बहुत ब्लेस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर।